میرے ساتھ جن اداروں نے اسٹیبلشمنٹ نے جس نے سارا کچھ کیا ہے، کیونکہ دہلی حکومت بنی ہے 8 فروری کے بعد، اس کے درمیان میں بڑی کارروائی ہوئی ہے. وہ کارروائی جن لوگوں کے ہاتھ میں تھی، میری بات چیت ان سے ہے. خدا کی قسم اس ملک میں سب سے زیادہ سیاست جو ہے نا وہ پاکستان کے ادارے کر رہے ہیں آج. اچھا، اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے؟ چند غلط فیصلوں کی وجہ سے، چند لوگوں کی وجہ سے فوج بدنام ہو رہی ہے. بارڈر پہ کھڑا وہ فوجی یا اس ایریا میں جہاں پہ ہمارے مسائل ہیں، وہاں پہ میرے بچوں کے لیے میری حفاظت کے لڑنے والا وہ فوجی، وہ عزت اور مقام اس کو نہیں ملا جو ملنا چاہیے. لیکن میں فیصلہ ساز کو اس لیے بٹھاؤں گا کہ میں اس بندے سے بات کر کے مزید ٹائم ضائع نہیں کر سکتا جس کے پاس اختیار ہی نہ ہو. اختیار کے ساتھ ہی بات ہوگی، ساتھ بٹھانا ہے بٹھا لیں ان کو. تو اس کی شروعات ہم نے کی ہے لاہور سے. کل ہماری پورے پاکستان کے تمام پارلیمنٹیرینز کی اور لیڈرشپ کی ایک میٹنگ ہوئی ہے لاہور میں، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آگے کے لیے ہم نے کس طرح کے عمل کے ساتھ آگے بڑھ کر اس تحریک کو دوبارہ سے 5 اگست تک پیک پہ لے کے جانا ہے، اور اس کے بعد ایک فیصلہ کرنا ہے کہ آگے ہم نے کیسے بڑھنا ہے. تو ہماری جو تحریک ہے وہ تو ہماری میرے خیال میں سب سے زیادہ جو پاکستان میں کسی پارٹی نے اگر تحریک چلائی ہے اور کسی لیڈر نے تحریک چلائی ہے تو عمران خان نے چلائی ہے. پارٹی بنانے سے لے کر اب تک عمران خان صاحب نے ہمیشہ قوم کی بات کی، پاکستان میں قانون کی بالادستی کی بات کی، آئین کی پاسداری کی بات کی، اور پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے خودداری، خود مختاری اور اپنا جو ہمارا ایک حقیقی آزادی ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے باوجود نے قربانی دی، اس کے بارے میں بات کی اور قوم کو شعور کی بات کی. تو آج ماشاءاللہ قوم میں شعور آ گیا. آپ نے دیکھا کہ 9 مئی کے بعد فستائیت کر کے، جبر کر کے، پارٹی کا نشان لے کر سب کچھ کیا انہوں نے. ہمارے لوگوں کو توڑا، تشدد کیا، ورکر سے کیا، لیڈرشپ سے، پوری پارٹی کے ساتھ. لیکن 8 فروری کو لوگوں نے ثابت کیا کہ قوم جاگ گئی ہے اور انہوں نے عمران خان کو ووٹ دیا جو کہ میرٹ انہوں نے چوری کر لیا. اس کے بعد سے یہ ریگولر ایک ہمارے خلاف ابھی بھی وکٹمائزیشن شروع ہے، اور ہم تمام عدالتوں کے تمام دروازے کھٹکھٹا چکے ہیں. عمران خان نے کیس چلائے ہی نہیں جا رہے. کیس اس لیے نہیں چلائے جا رہے کہ ان کیسوں میں کچھ ہے ہی نہیں. تو کیس جب چلتا ہے تو اس کیس میں کچھ ہے ہی نہیں، تو اس لیے کیسوں کو نہ چلا کر ڈیلنگ ٹیکٹکس کر رہے ہیں. تو میں سب سے پہلے تو اپنے تمام ورکرز کو، پی ٹی آئی کے سپورٹر، ووٹرز، لیڈرشپ، پارلیمنٹیرینز اور اوورسیز جو ہمارے جتنے بھی عمران خان صاحب کے فالوورز ہیں، ان کو سلام پیش کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں اس بات پہ کہ انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے. کیونکہ دنیا کی سیاسی تاریخ میں آج تک کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ اتنا ظلم اور جبر نہیں ہوا پولیٹیکلی جو کہ ہماری پارٹی کے ساتھ ہوا ہے. لیکن لوگ پھر بھی کھڑے ہیں. اب انشاءاللہ ہم لوگ اپنی اس تحریک کا جس کے اندر ہمیں انہوں نے گولیاں بھی ماری، ہمارے ساتھ انہوں نے سب کچھ کیا، ہمارا آئینی حق کہ ہم پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں ہمیں نہیں چھوڑتے، ہم جلسہ کرنا چاہتے ہیں ہمیں نہیں چھوڑتے. تو ہم ابھی اس کا سٹارٹ لے رہے ہیں، اور ہم انشاءاللہ پورے پاکستان میں اب ہر گلی، کوچے، محلے، قصبے، انشاءاللہ شہر اور ضلع سے انشاءاللہ اس کو اٹھائیں گے، اور پھر اٹھا کے لوگوں کو اکٹھا کر کے پھر پلان دیں گے کہ ہم نے وہیں پر کچھ کرنا ہے یا پھر کہیں ایک جگہ پہ آگے کرنا ہے. تو وہ اکارڈنگلی پھر انشاءاللہ اناؤنس ہوگا. لیکن یہاں پہ میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو نظام بنا ہوا ہے پاکستان کا، یہ جو ریاستی ادارے ہیں، ان کا جو کام ہے آئین کے مطابق، یہ اپنے اس کام کو چھوڑ کر ایک اور کام پہ لگ گئے ہیں جو ان کا کام نہیں ہے. اس وجہ سے ملک میں دہشت گردی، آج آپ حالات دیکھیں پختونخوا میں، بلوچستان میں، تو اس حالات کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس حالات کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جن کی ذمہ داری بارڈر کے اوپر اپنے بارڈرز کو کلیئر کرنا ہے. لیکن انفارچونیٹلی بارڈروں کو چھوڑ کر وہ ہمارے طریقے انصاف کے لوگوں پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو میں ان سے یہ گزارش کروں گا، اور پھر میں ریپیٹ کروں گا کہ میری یہ گزارش جو ہے اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے کہ آپ اس ملک کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں. آپ نے مارشل لا لگائے، بار بار لگائے. اس مارشل لا سے پاکستان کو اور انٹرنیشنل اتنا نقصان ہوا پاکستان کی جمہوریت کو، کسی چیز سے نہیں ہوا. کہاں گئے مارشل لا لگانے والے؟ آج وہ پاکستان میں نہیں ہے. بھگت کون رہا ہے؟ تعلق نہیں ہے. خدا کی قسم اس ملک میں سب سے زیادہ سیاست جو ہے نا وہ پاکستان کے ادارے کر رہے ہیں آج. اچھا، اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے؟ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ دیکھیں میں بذات خود ایک فوجی کا بیٹا ہوں، ایک فوجی کا بھائی ہوں. میری فوج بدنام ہو رہی ہے چند غلط فیصلوں کی وجہ سے، چند لوگوں کی وجہ سے فوج بدنام ہو رہی ہے. بارڈر پہ کھڑا وہ فوجی یا اس ایریا میں جہاں پہ ہمارے مسائل ہیں، وہاں پہ میرے بچوں کے لیے میری حفاظت کے لڑنے والا وہ فوجی، وہ عزت اور مقام اس کو نہیں ملا جو ملنا چاہیے غلط فیصلوں کی وجہ سے. تو اس لیے ہم نے اپنے ادارے خود ٹھیک کرنے ہیں. آئیں مل کے بیٹھیں، اپنی غلطی کو مانیں اور آگے بڑھیں. عمران خان صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ میں پاکستان کے لیے
बावजूद इसके कि जो जुल्म उसके साथ हुआ है, आज उसकी बीवी को जेल में डाला हुआ है, इतनी कमजरफी, उसके बावजूद वो कह रहा है कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ। आए बैठे, अपनी गलतियों को माने, अपनी गलतियों को सुधारें। 76,000 अरब से ज़्यादा कर्जा हमारे पे चढ़ चुका है। हम किस तरफ जा रहे हैं? हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है? ये कौन सोचेगा? ये फैसले कौन करेगा? ये किसकी जिम्मेदारी है? ये हम सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है। और मैं तमाम सियासी पार्टी से भी कह रहा हूँ कि आप कदमों पे सवार होकर जिस तरीके से आए हुए हैं, आप जरा अवाम में जाके देखें। अवाम आपको मुस्तरद कर चुकी है और मुकम्मल मुस्तरद कर चुकी है। और आप ये जो अपने बच्चों के लिए और पाकिस्तान में जो आप ये एक कल्चर डेवलप कर रहे हैं, ये कल्चर हम नहीं चाहते। इस कल्चर में कल आप भी नुकसान उठाएंगे। और इन सियासी पार्टियों के थोड़े बहुत वोटर्स हैं, कोई थोड़े बहुत सपोर्टर्स हैं, उनको ही मैं कह रहा हूं, इन्होंने भाग जाना है, आपने यहाँ पे रहना है। आप सोचें कि जब मेरे पीटीआई के किसी वर्कर के घर के ऊपर, ओहदेदार के घर के ऊपर, वोटर के घर के ऊपर छापा लगता है, उसकी चादर और चारदीवारी पामाल होती है, उसका घर तोड़ा जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है, तो क्या आप बहैसियत इंसान या बहैसियत मुसलमान, क्या ये ठीक है? और अगर आप इसमें खामोश हैं तो कल आपके साथ अगर ऐसा होगा तो आपके लिए भी कोई आवाज नहीं उठाएगा। इस बात को समझना जरूरी है। इसलिए सबकी साझी है। इस मुल्क का कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। आइन की पासदारी हम सब पे फर्ज है, वरना हमने तो बर्दाश्त कर लिया, कर भी रहे हैं, फिर बहुत सारे और से बर्दाश्त भी ना कर सके। तो हमारी ये गुजारिश है कि इस निज़ाम के अंदर जो भी बेनिफिशरी हैं और जो इस निज़ाम को इस वक्त हाईजैक करके चला रहे हैं, वो प्रॉपर तरीके से बैठे। और ये बात करना कि मैं जवाबदेह नहीं हूँ, ये बिल्कुल गलत है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि जी मैं जवाबदेह नहीं हूँ। आप जवाबदेह हो, आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। मुल्क की डूबती हुई मैशत, मुल्क के हालात, मुल्क पे आज जो इस वक्त दहशतगर्दी के हालात हैं, उसका सारे का सारा बोझ आपको उठाना पड़ेगा। दहशतगर्दी इमरान खान साहब के वक्त में क्यों नहीं थी? आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, उस वक्त कितने खुदकुश हमले हुए, कितने धमाके हुए, कितने लोग उसमें मारे गए, हमारे कितने लोग शहीद हुए उसमें, कितने ड्रोन अटैक हुए। आज क्या हालात है? पीडीएम 1 आई, वही हालात बन गए। अब पीडीएम 2 आई, उससे बदतर हालात हो रहे हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है और आपकी वजह से हुआ है, आपने इसको ऑन करना है। ठीक है, हम मुकाबला करेंगे, हम मुकाबला कर भी रहे हैं, लेकिन अपनी फराइज से रूगर्दानी आप नहीं कर सकते। आप आए, बैठे, बात करें, दलाइल पे बात करें। आप दलाइल से साबित कर दें कि मैंने मुल्क के खिलाफ साजिश की है, मुझे इस चौक पे लटका दें आप, मैं तैयार हूं उसके लिए। लेकिन बगैर दलाइल के, बगैर सबूत के, बगैर वजह के आप जिस तरीके से 26वीं तरमीम ला के आपने इस वक्त मुल्क की एक अदलिया थी, उसको भी आपने महकूम कर दिया है, हथकड़ियां लगा दी है। तो कौम कहां जाए? क्या रास्ता छोड़ा आपने कौम के लिए? तो इसलिए अपनी जात से निकलें, अपनी अनाज से निकलें और एक कौम बन के सोचें। उसके लिए इमरान खान साहब ने पहले भी कहा है, बार बार कहा है, आओ बैठो, मसले को हल करो, मेरिट पे हल करो, दलाइल पे हल करो। जिसकी गलती है वो अपनी गलती मानेगा, जिसकी गलती है साबित हो, बिल्कुल सजा हमें देते हैं, हम सजा के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर सजा पे बात आएगी तो फिर सजा हर एक को होगी। अगर मैं ये कह रहा हूं कि मुझे सजा दो अगर मेरी गलती है, तो फिर जब इस टेबल पे बैठेंगे और इस बातचीत में बैठेंगे तो फिर हर गलती वाले को सजा दी जाएगी, जिसने जब भी की है गलती। तो उसके लिए हम तैयार हैं, पाकिस्तान के लिए हम तैयार हैं। तो इंशाल्लाह हमारी ये तहरीक जो है, मैंने कल अनाउंस किया है, क्योंकि अब मेरे ख्याल में इमरान खान ने तो हमें एक चीज़ सिखाई थी कि सियासत के लिए नहीं, इलेक्शन के लिए नहीं, जनरेशन के लिए हमने काम करना है। तो अब हमने इतना सारा कुछ देख के फैसला किया है और कल 90 दिन की एक अनाउंसमेंट की है, क्योंकि इमरान खान साहब हमेशा तब्दीली के हवाले से 90 दिन का कहा करते थे। तो एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि 90 दिन का राह से शुरू हो गए हैं और इस 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करेंगे, या फिर हम रहें या ना रहें। फिर इस सियासत का कोई फायदा नहीं है इस मुल्क के अंदर, क्योंकि ये सियासत नहीं है। ऐसी सियासत से बेहतर है हम सियासत ही ना करें, फिर अपना कोई रास्ता हम इख्तियार करें और अपना रास्ता इख्तियार करके हम अपने हक के लिए अपना वो रास्ता इख्तियार करें कि जिसके अंदर कम अज़ कम हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे गुलाम हों और उनके बच्चे गुलाम हों। तो जिसने हमारी कौम को गुलाम बनाना है वो भी सुन ले, और जिसने आज़ाद रखना है अपने बच्चों को वो भी सुन ले कि आपके पास दो ही रास्ते हैं। गुलाम बनना है तो ये निज़ाम चलने दो, आज़ाद होना है, बच्चों को आज़ादी देनी है, खुददारी देनी है, खुद मुख्तारी देनी है, तो उसके लिए
फिर आओ हमें ज्वाइन करो, मुत्तहिद हो जाओ और ज्वाइन करके अपने जायज़ हकूक़ के लिए, अपने आइनी हक के लिए इकट्ठे होकर हकीकी जमहूरियत की हकीकी आज़ादी के लिए इमरान खान का और हमारा साथ दें। शुक्रिया। ये लगता है कि आपका एतमाद इदारों से उठ चुका है, क्या आप मुज़ाकरात की भी दूसरी बात कर रहे हैं, बैठने की बात कर रहे हैं? क्या आपके पास ऑप्शन बचते हैं? सियासतदानों से मुज़ाकरात करेंगे या अदारों के उन्हीं लोगों के ऊपर जिन पे आप एतमाद नहीं कर रहे उनसे बात करेंगे? देखिए, इमरान खान साहब ने हमेशा फैसला करना है, हमारा फैसले का इख्तियार इमरान खान साहब के पास है। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली बताया हुआ है कि फैसला साजों के साथ ही मुज़ाकरात करूंगा ना, जिसके पास इख्तियार ही नहीं है उसके साथ मैं क्या बात करूंगा। तो फैसला साजों के साथ मैं बात करूंगा, फैसला साज में साथ और लोगों को बिठाता है तो बिठा ले, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं फैसला साज को इसलिए बिठाऊंगा कि मैं उस बंदे से बात करके मजीद टाइम ज़ाया नहीं कर सकता जिसके पास इख्तियार ही ना हो। इख्तियार के साथ ही बात होगी, साथ बिठाना है बिठा ले उनको, हमें कोई एतराज नहीं है। आपने कहा जिनके पास मैंडेट है उन्हीं से आप बात करेंगे, आपकी पार्टी की तरफ से आपके पास मैंडेट होगा, बैरिस्टर गौहर साहब के पास होगा, या पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात की बातें की जा रही हैं, पार्टी भी 90 दिनों में वन पेज पे नजर आएगी और आपकी जो मोबिलाइजेशन होगी इसमें दीगर सियासी जमातों से भी आप राब्ता करेंगे या सिर्फ फैसला साजों से ही राब्ता करेंगे? इसके साथ ऐड कर लीजिए करें कि इस तहरीक को लीड कौन करेगा जो ये कल से शुरू की गई? हमारी तहरीक का ऐलान इमरान खान साहब ने किया है कि वो खुद लीड करेंगे और खुद लीड वो कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात जो आपने की है कि इमरान खान साहब ने ये वादे पैगाम दिया है कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, लेकिन उन लोगों के साथ तैयार हूँ कि जिन लोगों के साथ इख्तियार का, फैसले का इख्तियार है। उसके बाद अगर अपने साथ वो लोगों को अलाइन करते हैं, ये जो मैंडेट के बगैर हुकूमतें जिन्होंने बिठाई हुई हैं उनको साथ बिठा दे तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मेरे साथ जिन इदारों ने, इस्टेब्लिशमेंट ने, जिसने सारा कुछ किया है, क्योंकि जैली हुकूमत बनी है 8 फरवरी के बाद, उसके दरमियान में बड़ी कार्रवाई हुई है। वो कार्रवाई जिन लोगों के हाथ में थी, मेरी बातचीत उनसे है। उससे पहले जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई है तो अब सबको पता है कि हुकूमत, और खुद मान चुके हैं ये लोग, ये मैं नहीं कह रहा, खुद मान चुके हैं ये कि हुकूमत जनरल बाजवा ने गिरवाई है। मौलाना फजल रहमान साहब का बयान आप देख लें, उनका बयान था कि जी हमने गिराई है। फिर उन्होंने बयान दिया कि हमें बाजवा साहब ने कहा और हमने कहा कि नहीं अभी ये टाइम नहीं है, फिर भी उन्होंने हमें कहा कि नहीं गिरानी है और उन्होंने गिराई है। तो हमने उनके साथ बैठना है, क्योंकि ये जो कहानी शुरू हुई है स्टैब्लिशमेंट से शुरू हुई है, फॉलोड बाय फिर उनकी बिठाई हुई एक PDM 1, फिर उसके बाद फिर बिठाई हुई एक गैप, उसे बिठाई हुई एक इंटरिम गवर्नमेंट इनकी बिठाई हुई जिसने अपना इख्तियार जो इस्तेमाल किया हमारे खिलाफ, वो भी आपके सामने है। फिर बिठाई हुई एक PDM 2, हम बैठेंगे इनके साथ, उसके साथ इनको बिठाते हैं, ये बिठाएं, ये उनकी तरह बैठे होंगे। लेकिन ये भी सारे से बैठे होंगे कि इमरान खान ने कहा है कि मैं इख्तियार वाले के साथ ही बात करूंगा, और अगर ये कहते हैं कि हम नहीं बैठते, हम अबाउट अल्लाह हैं, हम कोई बहुत बड़ी चीज़ हैं, हम तो जवाबदेह ही नहीं है, तो भी ठीक है यार, आज ताकत आपके हाथ में है, चला लो, क्या कर लोगे, जुल्म और कर लोगे, कर लो। आपकी इससे पहले भी मुज़ाकरात होते रही हैं, और अगर मुज़ाकरात आपकी होते रही हैं और मुज़ाकरात जो ब्रेक थ्रू हुए हैं किस वजह से आगे ब्रेक थ्रू हैं? और दूसरा, एहतजाज की जो बात है, 5 अगस्त की बात सुनी थी कि 5 अगस्त को पीक पे एहतजाज हुआ, अब आप 90 दिन की बात कर रहे हैं। ये 90 दिन का बीच में जो नया जिक्र है, इस हवाले से 90 दिन आपने किसको दिए हैं? हुकूमत को दिए हैं, एस्टेब्लिशमेंट को दिए, क्या अपने आप को दिए है? पहली बात तो ये देखें, 5 अगस्त का था कि 5 अगस्त तक एक नया अमल बनाना है और उसको पीक पे लेके जाना है, क्योंकि पिछली दफा जो हमने एहतजाज किए, पाकिस्तान की तारीख सबसे बड़े एहतजाज किए, तो आखिर में हमें गोलियां मारी गई, हमारे लोगों को शहीद कर दिया, गोलियां मार दी गई हमें। तो उसके बाद अब नया अमल बनाकर हम ऐसा करेंगे कुछ कि उसको 5 अगस्त तक पीक पे ले जाएंगे अपने पॉलिटिकल तरीकाकार से, अपने आइन और कानून के अंदर रहते हुए। उसके बाद 5 के बाद हमने क्या फैसला करना है, वो हमने 5 को पीक का कहा है। हमने कोई ये नहीं कहा कि 5 कोई डेडलाइन है। मैंने जो 90 दिन का कहा है वो अपने लिए कहा है कि इमरान खान साहब ने हमेशा 90 दिन को एक टारगेट रखा कि 90 दिनों में हम कर सकते हैं कुछ, अपने टारगेट रखे हमने अपने लिए कि 90 दिन में अब हमने फैसला करना है कि यार इस मुल्क में क्या सियासत करनी भी चाहिए, ये कैसी सियासत है इस मुल्क के अंदर, ये क्या हो रहा है हमारे साथ। और अगर नहीं है तो हम फैसला करेंगे कि सियासत करनी है, या सियासत से तो काम नहीं बनता, तो सियासत से काम नहीं बनता तो फिर वो जो लाइमल आपके सामने आएगा तो हम आपको बता देंगे इंशाल्लाह।